યુ આર યુઝિંગ ધ કોમ્પ્યુટર ઓડિયો ના પાડવાની જ ને આપણે એમાં. નહીં કનેક્ટ જ છે ઓલામાં.
नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर नागर। तो डॉक्टर नागर शायद जूही बहन नहीं ज्वाइन कर पाएंगी, और मुझे भी थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है क्योंकि एक और कॉल है। सो आज का विषय था लीडरशिप पे। यस सर। सर So we'll just wait. So Falguni, Juhi is not joining now. I don't think so. Okay, so I think we can begin once Iraben has to join. She has joined, but I think she's got disconnected. She was there Okay. a few Okay, seconds. Aarti Ben has joined. I don't know if Kamal Ben and Uma Ben are going to be able to join. But Kamal Ben also said she will join if possible and when possible. So she's also not very sure. ठीक है, let's just wait for Iraben. उसके बाद शुरू करते हैं। तो डॉक्टर नागर, I will only be there in the beginning till about 3:30. Then I will have to drop off the call. Riya will be there. आप लोग चर्चा करते रहिए, और then we can have a further discussion about it, right? Sure sir. So there was a message from Suresh Bhai too that he's busy at Gandhinagar in a meeting. Okay. So perhaps he would also not be joining sir. ठीक है, तो हम ही लोग होंगे लगता है, राइट? तो ये बस चेक कर लेते हैं कि अगर ईरा बहन ज्वाइन कर सकती हैं कि नहीं, और नहीं तो हम शुरू करते हैं। आई थिंक डॉक्टर नागर शुरू ही करते हैं। Sure sir. Yes, sir. Sir, there's a small screen, a small page that I'd like to share. So, Okay. Falguni, would you please give me the screen sharing right? Yes, I've already. Sure. I hope the screen is visible, sir. Yes, डॉक्टर नागर, बिल्कुल। Namaskar, everybody. I'll begin today's session with reading out this poem, sir. This poem happens to be one of the most popular and
poems in the Tagorean canon, sir. And it epitomizes the philosophy that we are looking to restore at Arya Kanya Gurukul. It's about education. One of the very important texts that we have in the Indian philosophical tradition is the Bhagavad Gita, sir. So this, to my mind, happens to be so very appropriate into defining the qualities that we would want to look in a leader. For every student who would emerge out of Arya Kanya Gurukul would be a leader in herself. And we would desire that these qualities, these were the expectations that our national leaders had in the 19th century. And this poem, sir, very, very finely defines the qualities that is expected of every leader. I'll begin with the poem, sir. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms to its perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. It's an entire journey that we have in the poem, sir. जहां मन भयमुक्त हो और मस्तक ऊंचा उठा हुआ हो. पहली पंक्ति में सबका ध्यान में खींचना चाहूंगा कि मन केंद्र में है. कविता की शुरुआत मन से होती है. अगर मन निर्भय होगा तो मस्तक ऊंचा रहेगा, उठा रहेगा, आत्मविश्वास से भरा रहेगा. पहली ही पंक्ति, अगर उस संदर्भ को सर अगर हम विमुक्त कर दें, चूंकि 19वीं सदी में सदी से लेके 20वीं सदी तक उसका जो एक उपनिवेशवाद का जो दौर था, जहां हर नागरिक, देश का नागरिक भय से भरा हुआ था, उस संदर्भ को अगर हम विमुक्त करते हुए भगवत गीता के सिद्धांतों को केंद्र में रखते हुए अगर हम इसका पठन करें, क्योंकि श्रीनिवास आयंगर ने बहुत अच्छे से कहा था सर कि गीतांजलि जो है वो रिकॉन्टेक्चुअलाइज भगवत गीता है. और जितने भी मार्ग बताए गए हैं भगवत गीता में, जितने भी रास्ते दिखाए हैं, तो वहां मन केंद्र में होता है. इसलिए मन का निर्भय होना बहुत जरूरी है. नेतृत्व की हम जब बात करते हैं तो उसमें एक नेता को निर्भय होना चाहिए. और निर्भय अगर वो रहेगा, क्योंकि वो इट्स द फर्स्ट रिक्विजिट, तो खुद ब खुद उसका मस्तक जो है उठा रहेगा. और उठा हुआ मस्तक जो है वो आत्मविश्वास का प्रतीक होता है. और चूंकि ये कहा जाता है हमारे भारतीय परंपरा में कि जहां आत्मविश्वास है वहां आत्मसंतोष है. जहां आत्मसंतोष वहां प्रेम है. और जहां प्रेम है वहां सत्य है. तो श्रद्धा जो है घूम फिर के आप देखिएगा कि आखिर में जब आखिरी पंक्ति में इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम की वो बात करते हैं, ये ख्याल जो है वो राम राज्य के ख्याल से भिन्न नहीं है.
एक आदर्श स्थिति जिसकी संकल्पना कवि कर रहे हैं उससे भिन्न नहीं है। आर्य कन्या गुरुकुल जिस मुकाम पे सब ले जाना चाहते हैं ये उससे भिन्न नहीं है। चाहे ये एल दोरादो का कॉन्सेप्ट हो, सिडनी का आर्केडिया हो, श्री राम का राम राज्य हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर का हेवन ऑफ फ्रीडम हो, या बाइबल का द किंगडम ऑफ हेवन हो। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन सब का इस बात पे बहुत उन्होंने तवज्जो दी है कि मन जो है निर्भय होना बहुत जरूरी है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free। और चूंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, बात हमें जाननी होगी, समझनी होगी कि ज्ञान जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो खरीदी जा सकती है। ज्ञान जो है वो भारतीय परंपरा में शब्द ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्ममयी, चराचरमयी, वांगमयी, श्रीमयी। ज्ञान ब्रह्म की तरह है, वो हर जगह है। एंड वी हैव टू कनेक्ट अवरसेल्व्स टू दैट। ऐसा कहा जाता है सर कि स्वामी विवेकानंद अपनी ट्रांसेस में जाते थे और उन ट्रांसेस में वो उस ऋषि परंपरा में जहां संस्कृत सिखाई जाती थी उस परंपरा के तहत उन्होंने संस्कृत सीखी, और जब ट्रांस से बाहर आते थे तो वो चेस्ट संस्कृत बोला करते थे। एक शब्द में सर पूरी जो भारत की विचारधारा है उसके ऊपर टिप्पणी भी करते हुए कि ज्ञान कोई कमोडिटी नहीं है। Knowledge is not a commodity to be marketed. It has to be free. For as Tennyson says, the more one gives, the more one learns, there is more to be learned. जहां ज्ञान एक नेता में, और वो भी जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, वो ज्ञान की खोज में अपने आप को जिंदगी भर भी लगा दे तो भी वो ज्ञान रूपी का एक बूंद ही वो ग्रहण कर पाता है। क्योंकि ज्ञान जो है मुक्त है। इंसान में अगर जैसे सेंट्रल बोर्ड में बहुत अच्छे से सर कहा जाता है कि OS ऑब्जर्वेशन स्किल्स होने चाहिए। अगर ऑब्जर्वेशन स्किल्स है तो इंसान ज्ञान कहीं से भी कर सकता है। वो मुक्तता अगर उसमें है, वो आजादी अगर उसमें है ज्ञान को समझने की, ज्ञान को परखने की, तो पहली जो होती है मन निश्चित रूप से निर्भय होगा। The world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। जहां ज्ञान की हमें समझ है सर, साथ साथ इस संसार की भी समझ हमें यह होनी चाहिए कि सीमित घरेलू दीवारों के टुकड़ों में वो बटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज सर साहित्यिक विवेचन में हम ये कहते हैं कि सारी पृष्ठभूमि ये ब्रह्मांड है। हमारा जो परिपेक्ष है वो सारा ब्रह्मांड है। जो मन है वही हमारा ब्रह्मांड है। और मन में इस तरह के सीमित घरेलू दीवार नहीं होनी चाहिए। ऑर्थोडॉक्सी की बात में कर रहे थे। अगर सामाजिक संदर्भ अगर हम देखें, परंपराएं जो है, अच्छी परंपराएं जो है उनको हमें निभाना चाहिए। लेकिन जो रूढ़िचुस्त परंपराएं हैं जिसमें ऑर्थोडॉक्सी है, उन परंपराओं से हमें उभर कर हमें एक वैश्विक नजरिए से चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारा मानस रूपी संसार जो है, इट इज वन। वो विभाजित नहीं होना चाहिए, और वो भी सीमित घरेलू टुकड़ों के दीवारों में विभाजित नहीं होना चाहिए। हम एक है, और यही
आर्य कन्या गुरुकुल की खासियत होनी चाहिए कि हम एक हैं, हमारी फिलॉसफी एक है, हमारी विजन एक है, हमारा दृष्टिकोण एक है। तभी उस निर्भय वाली अवस्था में हम पदार्पण कर सकेंगे, तभी आत्मविश्वास हमारे बच्चों में होगा। Where words come out from the depth of truth. और ये पहली दो अवस्थाएं अगर होती हैं, अगर मन निर्भय होता है, ज्ञान की सही समझ होती है, ये समझ होती है कि हमारा जो परिप्रेक्ष्य है वो सारा ब्रह्मांड है। सर, तुलनात्मक साहित्य में जो पृष्ठभूमि मानी जाती है वो सारा ब्रह्मांड, सारा संसार। वी ड्रॉ फ्रॉम लिटरेचर्स। ऐसा नहीं कह सकते कि आज के जमाने में कि शेक्सपियर अंग्रेजों के हैं और कालिदास हमारे हैं। शेक्सपियर ब्रह्मांड के हैं और कालिदास भी ब्रह्मांड के हैं। इस तरह की जो नेशनल बाउंड्रीज बनाई गई हैं, कम से कम शैक्षणिक दृष्टिकोण से उसको हमें ट्रांसेंड करना होगा, उससे उभरना होगा, और फिर यह एहसास होगा कि हमारे शब्द जो है वो सत्य की गहराई से उपजते हैं। मैं समझता हूं सर कि ये जो वाक्य है जो कविता के मध्य में आया है, जहां सत्य की बात की गई है, नेतृत्व के दृष्टिकोण से निर्भय होना चाहिए, ज्ञान की सही समझ होनी चाहिए, शिक्षा की सही समझ होनी चाहिए, व्यापक निरपेक्ष होना चाहिए, और उसके शब्द जो है अनुभूति से उपजने चाहिए। वे वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। सत्य की गहराई में से सत्य शब्द जो है प्रस्तुत होते हैं। सिंसियरिटी की बात जो बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे, इट इज इन द डेप्थ ऑफ साइलेंस दैट द वॉइस ऑफ गॉड इज हर्ड। शास्त्रियों ने भी कहा है कि शांति की गहराइयों में ईश्वर की आवाज सुनाई देती है, और वही सच्ची होती है। बाह्य परिप्रेक्ष्य एक तरह की परतें होती हैं सर, जो हमें प्रभावित करती हैं, लेकिन वो सच्ची नहीं होती। शब्द वही सच्चे होते हैं जो अनुभूति के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं, और उसके लिए सत्य की गहराई में झांकना, अपने अंतरात्मा में झांकना, अपने अंदरूनी दृष्टिकोण को धार करना। और जब ये होता है तो शब्द को ढूंढना नहीं पड़ता है, शब्द स्वयं प्रस्तुत होते हैं। लेकिन उसके लिए एक मार्ग है, और वो मार्ग जो है आने वाले पंक्तियों में स्वयं टैगोर बताते हैं, Where tireless striving stretches its arms to its perfection. जो नेतृत्व करना चाहते हैं वो निरंतर प्रयास कर, और निरंतर प्रयास करते हैं, और पूर्णता की तरफ अपनी बाहों को, अपने हाथों को अग्रसर होने देते हैं। क्योंकि पूर्णता कोई बिंदु नहीं है। Excellence is not a point. Perfection is not a point. It's a process. प्रयास हमारा थमना नहीं चाहिए, प्रयास हमारा रुकना नहीं चाहिए। सच्चा नेता वही होता है जो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होता है, और अपने प्रयास में रत्ती भर भी कमी नहीं आने देता है। यही राष्ट्र हीरो ने किया है सर। शांति ने फलश्रुति है। मैं समझता हूं सर, क्योंकि नानजी भाई कालिदास मेहता उनके समकालीन थे, ये उनकी जीवनी में भी इसकी परिपूर्ति नजर आती है कि औपचारिक शिक्षण पर्याप्त नहीं है, प्रयत्न। और ये सर, ये अपनी जीवनी में ये बात वो रह के कहते थे कि ईश्वर की कृपा और मनुष्य का प्रयत्न, ये दो चीजें बेहद जरूरी। मनुष्य का प्रयत्न जो है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, वो निरंतर। इसलिए स्ट्राइविंग के साथ टायरलेस शब्द जोड़ा गया। Where tireless striving stretches its arms to its perfection.
where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. निरंतर प्रयास हम एक नेता तब कर सकेगा, सत्य के गहराइयों में से उसके शब्द विस्फोटित तब होंगे जब उसकी नजर, उसका दृष्टिकोण एकदम साफ होगा, उस नहर की तरह, स्वच्छ नहर, जहां तर्क की स्वच्छ नहर मृत आदत की सूखी रेतीले रेगिस्तान में पथभ्रष्ट ना हुई। ये आई थिंक डॉक्टर नागर का फ्रीज हो गया है। Yeah, looks like it. Let's just wait a minute, he'll just rejoin. looks like there is a connection issue, sir. But No then I problem, hope Dr. Nagar. Yeah. you can hear me, sir. We can hear you now, and we could hear you almost till the end. Haji. Okay, sir. So, sir, I'll continue because I'm using my other connection. So, I'll Bilkul, just try to please go ahead. share the screen here. No, but then we have seen the poem, so I'll prefer to talk till the end, sir. Bilkul, Dr. Nagar, carry on. We've seen the Ravindranath ji ki poetry. We've seen the poem, and yeah. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, जहां तर्क की स्वच्छ नहर मृत आदत की सूखे रेतीले रेगिस्तान में पथभ्रष्ट ना हुई। दृष्टिकोण बड़ा साफ होना चाहिए। जो हमारा मस्तक है सर, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो साफ होना बहुत जरूरी है। हमारा लक्ष्य क्या है? अर्जुन की भांति हमें सिर्फ उस पक्षी की आंख नजर आनी चाहिए। एक नेता वही है जिसको अपना लक्ष्यांक साफ नजर आता है, हर रोज नजर आता है, हर क्षण नजर आता है। और इसलिए ये तर्क वाली जो नहर है सर, ये एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो मैं जिक्र कर रहा था, नानजी सेठ जी ने जो बात अपने सारे जीवन भर जिसके ऊपर यकीन किया, जहां मन आपके द्वारा प्रेरित है, ऐसे निरंतर विकसित होते हुए विचार और कर्म, But the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. जहां मन, देखिए सर, पहली पंक्ति में जो मन की बात कही थी, जो निर्भय होने वाली बात कही थी, वही मन दोबारा यहाँ पे आता है। शरणागति का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये मानना होगा भारतीय होने के नाते, ये जानना होगा, समझना होगा हम सबको कि हम जो हैं एक कॉस्मिक डिजाइन के तहत, अगर आज इस क्षण से मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है वो शरणागति कि हर विचार मेरा जो है, हर ख्याल मेरा जो है, जो निरंतर विकसित होता जाता है, क्रियाशील होता जाता है। एक सूत्रता की बात भी यहाँ पे कही गई है सर। एक नेता वो होगा जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं, जो वो विचार करेगा वही उसको क्रियान्वित करेगा। यूनिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड वाली जो एजुकेशन इन ह्यूमन राइट्स में सर हम लोग सब बात करते हैं,
अगर शरणागति है, जो हमारे नव भक्ति की सर हम लोग की भारतीय विचारधारा में, दार्शनिक विचारधारा में नव भक्ति की बात करी गई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। जो आखिरी है सर, आत्मनिवेदनम की बात यहाँ पे की गई, जहां कवि ये कह रहे कि एक उसको हम ईश्वर की संज्ञा दें, इष्ट देव की संज्ञा दें, लेकिन है कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो हमारे मन को निर्धारित कर रही है, गतिमान कर रही है, और गतिमान कर रही है ऐसे विकसित होते हुए विचार जो है वो खत्म नहीं हो जाता है, जैसे दृष्टिकोण कभी खत्म नहीं होता है। विचार सर्वोच्च है, यही बात जो है प्लेटो ने की थी सर। द आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी। विचार निरंतर जो है अग्रसर होता रहता है, एवर वाइडनिंग। जो ख्याल जो 1937 में जो बीज बोया गया था, वो निरंतर वो विचार जो है गतिशील है, गतिमान है, और वो क्रियान्वित हो रहा है, रह रहे के उसकी परतें हट रही हैं, दिख रही हैं। इसलिए ईश्वर की अनन्य भक्ति के साथ एक सूत्रता अगर एक नेता निर्धारित करे, उसकी वाणी में उसकी क्रियाओं में कहीं कोई ऐसा कभी आभास ना हो कि उसकी कथनी और करनी में फर्क है, तो ही वो सच्चा नेता अपने आप को कह सकता है। और आखिर में सर आप देखिएगा, into that heaven of freedom my father let my country away। ये सारी चीजों को, निर्भयता, मन की निर्भयता की हम बात करें, आत्मविश्वास की बात करें, ज्ञान रूपी जो प्रणाली है उसकी सही समझ की हम बात करें, वैश्विक परिप्रेक्ष्य की हम बात करें, सत्य की गहराई की बात करें, निरंतर प्रयास की हम बात करें, साफ मन, साफ दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, शरणागति की बात करें, इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो नेतृत्व के सारे जो गुण हैं, चाहे वो निर्भयता के हों, आत्मविश्वास के हों, सत्य के हों, न्याय के हों, संकल्प के हों, मेहनत के हों, स्थित प्रज्ञ अवस्था की भी बात कर रहे हैं, और एक शांत मन की हो, ये सारे गुण जो हैं हमारे उस आजादी रूपी स्वर्ग को बनाते हैं। हे प्रभु, हे परमपिता, हे परमेश्वर, मेरा देश जागृत हो उस आजादी रूपी स्वर्ग में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू डॉक्टर नागर, बहुत ही अच्छा आपने ये वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर लेके वहाँ से आगे बढ़ाया। आई अनफॉर्चुनेटली हैव टू लीव इन 2 minutes, मगर अगर आप डॉक्टर नागर सबकी राय लेके चर्चा आगे बढ़ाएं, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। जी सर। योगेश भाई, अगर सर आप अगर अपना फीडबैक देना चाहें सर। डॉक्टर नागर, इन ऑल थिंग्स जैसे हम पहले भी कर चुके हैं, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट कि इसका एप्लीकेशन गुरुकुल में क्या होगा, कि हम कैसे अपनी लीडरशिप स्टाइल में अपने जो हम गुरुकुल में करेंगे इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो उस पे गौर करिएगा प्लीज़। जरूर जरूर जरूर। कमलाक्षी मैडम, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर नागर।
मैडम आप कुछ प्रतिक्रिया प्लीज शेयर करेंगी? बहुत अच्छा presentation था. It was a good poem to choose, and you've really thought about it. As Shashank ji has said, अभी उनका application क्या है गुरुकुल में? I think one or two of the lines were particularly relevant, where we say that where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of habit. I think jo line hai, let's think about that a little bit for its application to Gurukul. For many years, we've been doing the same kinds of things, और अब शशांक जी के guidance, Guru Juhi ji ke guidance ke saath, we're trying to change our mindset. And I think that is something that we need to think about and keep that in view all the time. जो भी हम कर रहे हैं, पूछना चाहिए अपने आप को, क्यों कर रहे हैं? इसका ध्येय क्या है? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सदियों से कर रहे हैं, कि हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ उसका ध्येय है, कुछ प्रिंसिपल है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं. So let's not just do things because we've always been doing it. Let's do things because we've thought about it and we do it with deliberation and reason. Sure, ma'am. Thank you so much for your inputs, ma'am. ईरा मैडम आप प्लीज शेयर करेंगे? नमस्ते सबको. सर मैं थोड़ा आज लेट हो गई, इंटरनेट प्रॉब्लम था, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था. शुरू का थोड़ा सा मिस किया मैंने. आपका स्पीच बाद में तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे. एंड आई हैव रेड दिस बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ये पोएम मैंने कई बार क्लासेस में पढ़ाई है और कई बार कोट करी है मैंने. तो बहुत ही अच्छे इसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार हमें मिलते हैं इसमें, और कई लीडरशिप वैल्यूज भी दिखाई देती हैं जो हम अपने गुरुकुल में, जैसे अभी शशांक जी ने कहा कि गुरुकुल में हमने कैसे इन विचारधाराओं को अपनी, जो भी हम सोचते हैं लीडरशिप क्वालिटीज है, जैसे कि लीडर का एक विजन होना चाहिए और उस विजन को लेकर लीडर्स आगे चले. यानी कि लीडर्स को अपने और जो उनके साथ लोग हैं उनके साथ उनको मोटिवेट करते हुए जो सही है वो लेकर आगे चलना चाहिए. इस सही में पुरानी परंपराएं भी हैं और नए विचार भी हैं जिन्हें हम शामिल करके अपने साथियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके साथ चलते हुए एक टीम की तरह काम करते हुए आगे बढ़े और निरंतर अपने इन्फ्लुएंस से एक अच्छा इन्फ्लुएंस देते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले. यानी कि उन्हें इतना स्ट्रांग बनाए कि उनके अंदर जो छुपी हुई कैपेबिलिटीज हैं वो आगे आए, उन्हें हम उजागर करें. उनके साथ हम बहुत स्ट्रांग हो, पर स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि हम रूड हो जाएं. हमारे अंदर सॉफ्टनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए. काइंडनेस, दयालु होना मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हो गए. दयालु होना एक बहुत बड़ी अपने में एक क्वालिटी होती है इंसान में, वो वीकनेस नहीं है. हम बोल्ड हो, लेकिन बोल्ड होने के साथ साथ हम ऐसा ना करें कि हम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें, हम उन्हें बुली करने लगे, हम उन्हें कुछ बोलने लग जाए. हम सॉफ्टनेस रखें, हम थॉटफुल रहें दूसरे के बारे में, लेकिन थॉटफुलनेस के साथ एक हम बिल्कुल टू द अर्थ एकदम ग्राउंडेड रहे. हम्बलनेस हमारे अंदर होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए. एरोगेंस बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्ट्रॉय कर देता है, और घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एक अच्छे ह्यूमर के साथ, बिल्कुल ग्राउंडेड इंसान के साथ, जैसे मामूली जैसे बन के हम रहते हैं, अपनी नॉलेज को एक तरफ रखते हुए सबके साथ बराबर से आगे बढ़े. उनके अंदर जो भी छुपी हुई कैपेबिलिटीज है उनको उजागर करके उनको आगे लाए, जिससे उनमें हिम्मत आए हमारे साथियों में, और वो मेहनत से वो भी एक अपने बेस्ट लेवल को पा सके. हमारे अंदर जो क्वालिटीज है आज, जो हर एक लीडर के अंदर
एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आज हम उसको पहले समझें, हम लोगों को समझें, अपने साथियों को रीड करें, वो क्या कहना चाहते हैं वो सुने, वो समझें, और तभी हम कल उनको आगे मोटिवेट करके एक लीडर के तौर पर आगे ले जा सकेंगे। एक लीडर वो होता है जो लोगों के साथ चलता है। अगर हम साथ नहीं चले तो हम उनके लीडर नहीं हो पाएंगे। तो गुरुकुल में हमें अपने लोगों के सभी के साथ चलना पड़ेगा। हम उनसे आगे नहीं निकल सकते। हम उनको समझाते हुए, सिखाते हुए, गुरुकुल के एक विजन को साथ लेते हुए, एक टीम में काम करते हुए, बहुत मेहनत के साथ उनको सिखा के उस विजन को अचीव करने में उनकी मदद कर सकते हैं। और वो अचीवमेंट जो उनका होगा वो हमारा अचीवमेंट होगा, हम सबका अचीवमेंट होगा। किसी भी गोल को पाने के लिए ये काफी मुश्किल होती है, किसी भी लीडर को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत से सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। तो वो सब करने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा और अपने साथियों को आगे ले जाना होगा। उनका अपना एक लक्ष्य, एक विजन होता है जो हर एक लीडर का, उस विजन को, वो विजन वो होता है जो कि पुराने नियम, गुरुकुल के संदर्भ में बात कर रही हूँ, पुराने सभी रीति रिवाजों, पुराने सभी बहुत अच्छी परंपराएं, उन सभी को हमें लेना है साथ में, और उनके साथ नए विचारों को मिक्स करते हुए, अपनाते हुए, जो कि हमें फ्यूचर में काम देंगे, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में, हमारे गुरुकुल का नाम उजागर करने में, उन सब को एक साथ लेते हुए, अपने साथियों को प्रोत्साहित करते हुए, एक टीम में साथ मिलकर टुगेदर एक साथ हमें काम करना है। यही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यही हमारे सोचने का तरीका होना चाहिए गुरुकुल में, और यही हमारा, मेरे ख्याल से यही तरीका होगा जो हमें आगे ले जा पाएगा। थैंक यू सर। Yeah, thank you, Ira madam. May I request Ranja madam, please have अपनी बात रखेंगे। जी नमस्ते सबको। भगवत गीता के समान ग्रंथ गीतांजलि की बहुत उत्कृष्ट कविता से सर आपने एक लीडर को भय मुक्त होना चाहिए, ज्ञान की सही समझ होनी चाहिए, सबसे बड़ी जरूरी चीज सत्य होना चाहिए, निरंतर प्रयास, साफ दृष्टिकोण, लक्ष्यांक पर नजर, यानी अर्जुन को अपनी आंखी दिखे, पक्षी की आंखी, वो वाला भाव, शरणागति का भाव, और जो हमारे शास्त्र का मुख्य वाक्य है जिनमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि जिनकी कथनी और करनी एक हो, वो नेता हो या सामान्य इंसान, ईश्वर के नजदीक का व्यक्ति माना जाता है। और आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित कर देने की जो श्रृंखला आपने बताई, वो सही में बहुत, यानी बहुत एक नेता के गुण में मायने रखने वाली है। आपने बहुत अच्छी बातें, और खास करके जब रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को लेकर समझाई तो बहुत अच्छा लगा भी, और बहुत सारी नेता के गुण में नई चीजों का उसमें हमें समझ भी मिली। अब उसमें मैं जो थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ वो कहूंगी कि एजुकेशनल नेतृत्व में सबसे प्रथम बात ये भी है कि शैक्षणिक संस्था का जो लीडर है, उनकी पहली लायकात जो है वो एकेडेमिकली वो व्यक्ति श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पूरी शिक्षण व्यवस्था है वो एकेडेमिक बाबतों को केंद्र में रखकर चलने वाली व्यवस्था है। कई बार क्या होता है कि वहीवटी व्यक्ति एजुकेशन संभाल लेता है, तो उसका समय और शक्ति, अगर मैं एक कोट डाल के कहूं कि कुर्सी और टेबल गिनने में ही जाता है। तो जब कोई एजुकेशन का व्यक्ति लीडरशिप ले तो उनको पता चले कि वहीवट है वो एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन वहीवट के लिए नहीं है। तो कभी भी शैक्षणिक संस्था में जिनको एकेडेमिक कुछ भी पता ना हो, वो व्यक्ति वहीवट के तार के तौर पे चले ही नहीं है। अगर इसे हमें परसेंटेज के तौर पे डालना हो तो मैं ये कहूंगी
कि 60% एकेडमिक और 40% वहीवटदार के गुण एक शैक्षणिक संस्था के लीडर में होने चाहिए। इसको हम मापदंड या प्रमाण भी कह सकते हैं। वो व्यक्ति क्या पढ़ती है, उसके शिक्षा संबंधी विचार क्या है, कैसे हैं, वो शिक्षण के लिए सतत सोचता हो, वो लीडर में क्या शिक्षक लीडर में तो क्या शिक्षक में भी नहीं चलता अगर वो शिक्षा के बारे में सोचता ना हो। मैं यहाँ तक कहूंगी कि उनको सपने भी एजुकेशन स्कूल के आने चाहिए। वो फिल्म देखने जाएं तो उनके विचार ये आना चाहिए कि मैं उसको मेरी शिक्षा के साथ कैसे जोड़ सकूं, मेरी स्कूल के साथ। वो शॉपिंग में जाए तो भी some problem, Rajna madam, with your connection. हेलो सर, अब आ रही है आवाज? हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी सर कि वो सतत शिक्षा के लिए सोचता हो, एजुकेशन के लिए सोचता हो। उनको सपने भी स्कूल के ही आने चाहिए। वो शॉपिंग जाए, वो फिल्म जाए, देखने जाए तो उसके साथ वो सोचे कि मैं कैसे जोड़ सकूं। ये विचार उनको स्कूल के ही आने चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना कि तन मन और धन से ओतप्रोत हो जाना चाहिए। उत्तम स्कूल, मैं यहाँ एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगी कि जो उत्तम स्कूल्स हमेशा ऐसे जितने भी एजुकेशनल है, जो जिसने अपना सर्वस्व माना है, वैसे लीडर से ही पहचानी जाती है। चाहे मैं दो उदाहरण के साथ कहूंगी कि दक्षिणामूर्ति को किसकी है तो गिजुभाई बदेका की, लोक भारती किसकी है तो मनुभाई पंचोली की। क्यों ऐसा कहा जाता है? लोक भारती की स्थापना तो नाना भाई भट्ट ने की है, मनुभाई पंचोली ने नहीं की। पर वो उन्होंने जो लीडरशिप के तौर पे एजुकेशन में जो काम किया, उसकी वजह से वो संस्था जैसे उनकी हो इस प्रकार जानी जाती है। और गिजुभाई बधेका तो अकाउंटेंट थे, अफ्रीका से उनको लाया गया था। तो हम सब जानते हैं कि उनका पद प्रदान कितना है कि गुजरात में उनको मुछाड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। तो एकेडमिक गुण जो है वह केंद्र में होना चाहिए। ये हुआ नेता का पहला गुण। अब नेता का दूसरा गुण, दूसरा गुण यह है कि वो लीडर है तो उनको लीड करना है और अपने शिक्षकों को और अन्य कर्मचारियों को भी उनको लीड करना है। तो जगत में जहां कहीं भी लीडरशिप की बात आए, वहां सभी संशोधन, दुनिया भर के संशोधन एक बात पर सहमत होते हैं, और वो बात यह है कि हमेशा अपने वर्तन के द्वारा ही हम दूसरों को लीड कर सकते हैं, सूचना द्वारा नहीं। हम अपने में दोहराऊंगी इस वाक्य को कि हम अपने वर्तन के द्वारा ही दूसरों को लीड कर सकते हैं, सूचना द्वारा नहीं कर सकते। लीडर अपने कर्मचारियों बोले कि आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और वो कर्मचारी लीडर को कभी भी पढ़ते ना देखे अथवा उनकी बातों में पुस्तकों के संदर्भ ना आए, तो वो कभी भी नहीं होगा। दूसरा, हम ये सामान्य उदाहरण है कि लीडर ये बोले कि सबको समय पे आना चाहिए, और लीडर खुद देर से आए या मन चाहे तब आए, तो कभी भी वो दूसरों को टाइम पे आने का असर हो नहीं सकता। अगर लीडर चाहे कि उनकी शिक्षक अपने विषय में श्रेष्ठ काम करे और विषय को छोड़ के और भी नॉलेज होनी चाहिए, तो ये दोनों बातें पहले लीडर में होनी चाहिए। यह है लीडर का दूसरा गुण। तीसरा गुण यह है जो बहुत महत्व का है, वो है स्थानिक संदर्भ और स्थानिक लोगों से उनका जुड़ाव होना चाहिए। वो जुड़ाव भी सामान्य नहीं, सघन जुड़ाव होना चाहिए। कई बार हमने ऐसा देखा है, होता है और बहुत होता है कि शहर के लीडर यानी शिक्षण संस्था के जो लीडर है वो बाहर के हों, तो उसका भी बहुत असर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म कल्चर से अलग नहीं है। हमें सब साथ रखकर काम करना पड़ता है। मान लो कि वो स्थानिक नहीं है, तो शुरुआती समय में उस लीडर को स्थानिक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, स्थानिक लोगों को मिलकर उसकी सारी बातों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनकी
उनको कितनी सारी भूमिकाएं में काम करना होता है। इसके साथ गवर्नमेंट के जो सब नियम होते हैं उनकी जानकारी भी उनको होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो उसके हाथ नीचे काम करने वाली कर्मचारी हैं वो लीडर पर हावी हो जाता है। मेरा चौथा गुण ये है कि एजुकेशनल लीडर को कभी भी बॉस नहीं बनना चाहिए। उनको हर एक कर्मचारी का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है कि बॉस खुश रहना चाहिए, इसलिए बॉस को खुश रखने के लिए विभिन्न प्रयत्न कर्मचारी लोग करते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम यही मानते हैं कि कॉरपोरेट जगत में जैसी लीडरशिप है वैसी ही स्कूल में चलती है, वो नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ स्कूल में उत्पादन नहीं करना है। यहाँ तो जितने शिक्षक उतने गुण है। एक शिक्षक को लगता है कि मेरा विद्यार्थी है वो गणित में अव्वल नंबर होना चाहिए, दूसरे शिक्षक को लगता है कि मेरा विद्यार्थी है उसमें मूल्य ज्यादा होना चाहिए, तो श्रेष्ठ मूल्यों का स्थापन होना चाहिए। तो मैथ्स वाला केवल मैथ्स सीखे और मूल्य ना सीखे, और मूल्य वाला मूल्य सीखे और मैथ्स ना करे, वो ना हो। इसलिए वो सारे ताने बाने अच्छी तरह से बुनने का काम है, वो है लीडर का, ताकि हर शिक्षक के गुण का वो अच्छे से उपयोग अपने बच्चों के लिए कर सके। तो यही नागर सर के बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ मेरे जो 4 गुण थे वो लीडर में होने चाहिए। धन्यवाद। Thank you. Namaskar, Rina madam. Thank you very much. Yogesh bhai, if you could listen to us, would you please share your thoughts? हाँ डॉक्टर नागर, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया, जो ईराबेन ने बताया, जो रंजना बेन ने बताया, शायद इसमें सब पॉइंट्स कवर हो गए। करनी और कथनी ये आपका बहुत ही अच्छा लगा कि भाई जो बोलता है वही लीडर ने करना चाहिए। और जैसा शशांक जी ने बताया, हमको ये सब चीज गुरुकुल को मायने रखते हुए देखनी है। तो सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे ऐसा लगता है कि लीडर शुड हैव दी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, यानी उन्होंने अपने सभी सबऑर्डिनेट से अच्छा कम्युनिकेशन करना है, उनको सबको साथ में लेके चलना है, एंड ही शुड एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द अदर्स, कि भाई जो भी क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आता है उसको कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स में उसको देखना है, और सबको साथ में लेके ऐसे चलना है कि भाई गुरुकुल का गोल क्या है, पहले तो लीडर ने सभी को समझाना है, और ये गोल अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये सब कुछ उनको समझाना है और उनको इंस्पायर करना है कि भाई अपने को गुरुकुल को ये हाइट्स के ऊपर लेके जाना है। दैट इज व्हाट आई फील कि भाई लीडर शुड डू एज फार एज वी आर कंसर्न, आवर गुरुकुल इज कंसर्न, that he has ability to inspire and convince all the teachers that yes, this is the goal of the Gurukul and how best we can achieve it. That is what I feel. Dr. Nagar, आपका presentation जो था that was excellent, which covered almost all of this point. From the Gurukul's point of view, I just said few words. Thank you very much. Sure. Thank you very much, Yogesh bhai. Thank you very much for your inputs. प्रज्ञा मैडम, आप अपनी बात रखना चाहेंगी? जी सर। जी सर, बहुत कविता आपने सुनी थी और डिस्क्राइब भी बहुत अच्छी तरह से किया सर। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ होती हैं, और जैसे शशांक जी ने बताया कि क्या एप्लीकेबल हमारे गुरुकुल में हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें आपने जो बताई कविता के माध्यम से, उसके ऊपर ईराबेन ने भी बहुत कुछ कहा, रंजना बेन ने भी बहुत कुछ कहा। मुझे सिर्फ
छोटी बात एक कहनी है, जो वाणी और कर्म में ऐक्यता, वो सबने बोला सही है, चाहिए ही चाहिए हमें। और एक बात मैं कहना चाहूंगी सर कि दृष्टिकोण एक वर्ड आया था कहीं पे, तो मैं दृष्टि और कोण दोनों को मैं अलग अलग करके बात करनी चाहूंगी कि लीडर की दृष्टि, कोण का मतलब कोना, हर एक कोने तक पहुंचनी चाहिए ताकि उनको सही बात का पता हो, सही चीज का पता हो, तब जाके वो सही निर्णय लेगा और तब जाके वो सफल होगा। और हमारी जो संस्था एप्लीकेबल की बात की शशांक जी ने, तो हमारी जो संस्था है वो सिर्फ एकेडमिक नहीं है, साथ में रेसिडेंशियल भी है। तो हमारा एकेडमिक पार्ट भी एक अलग है और एक वहीवटी तंत्र भी है, जहाँ पे बच्चों को हमें पूरी व्यवस्था देनी है, वो पूरा वहीवटी तंत्र हमें अच्छी तरह से निभाना है। तो आई विश कि सब अच्छे से अच्छे आप कर रहे हो, आपका जो अफर्टलेस वर्क आप कर रहे हो सर, सब देख रहे हैं वो, और हम सब आपके साथ है सर। और एक एजुकेशन की बात की रंजना बेन को, तो मैं एक बताना चाहूंगी, चैनराज जैन है बेंगलोर में, जो सिर्फ 7 चोपड़ी पढ़े हुए हैं और लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर लेने जाते हैं। तो कभी कभी कम पढ़े हुए लोगों को भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी अपनी 2 इतनी बड़ी स्कूल है सर, एक की फीस लाखों में है। तो किसी एक व्यक्ति ने बोला कि सर आपने तो ये स्कूल बना दिया, तो यहाँ पे तो सिर्फ धनवान लोगों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे। तो बाजू में दूसरी सेम स्कूल उसने बनाई है सर, और सिर्फ उनकी फीस 1 रुपया है। तो सब कुछ हो सकता है। यस, शुरुआत हम अपने पिताजी से, कुल पिताजी से ही करें कि कम पढ़े हुए होते हुए भी उनका विजन जो आज तक हम पकड़ के चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है सर। और अभी लीडरशिप आपके हाथों में है सर, मजबूत हाथ है आपके, मजबूत कंधे हैं आपके। तो आई विश कि हम बहुत अच्छी तरह से आगे जाएंगे सर। हमारी शुभकामना आपके साथ है सर। थैंक यू सो मच। Thank you, Pragna madam. Riya madam, would you like to share your thoughts? डेफिनेटली डॉक्टर नागर, आई थिंक आपका प्रेजेंटेशन बहुत इम्पैक्टफुल था, एंड स्पेशली जो आपने पोएम चूज किया उसके अंदर आई ऑल्सो लाइक हाउ आपने खाली लीडर्स की बात नहीं की, यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि जो लड़कियां हैं उनको भी हमें एम्पावर करना है टू बिकम द लीडर्स ऑफ टुमारो, and in the same way all the teachers, all the students, they're all leaders of tomorrow, and as a leader it's our responsibilities to make them into the future leaders. एंड आई थिंक जो सबने बात की कि एक लीडर सिर्फ बताकर नहीं करके दिखाता है, एंड एक एजुकेशनल लीडर कैसे डिफरेंट होता है, आई थिंक वो सारी बहुत ही सही बातें हैं। एंड स्पेशली आई रियली लाइक हाउ दैट there was a line there which talks about perfection is a journey. I think you mentioned this, that it's not a point, it's a journey. So hame bhi Gurukul mein we have to tirelessly strive towards achieving the true potential of Gurukul. So I think ये poem बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट में बताता है हमको कि हम सब यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं एंड हमें कैसे से कंटिन्यू करना है ताकि गुरुकुल का जो असली पोटेंशियल है, जो उसका विजन है, वो अचीव हो पाए। सो ग्रेट एफर्ट डॉक्टर नागर। Sure. Thank you so much, Riya, for your inputs. Falguni madam, would you like to share your thoughts? Yes, sure, sir. So here's what I have to say, that Dr. Nagar, I really have always loved that poem of Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. So I think it is it's the most appropriate footing, the most appropriate beginning to start preparing the girls to be leaders. And of course, every individual in Gurukul, whether teacher or staff member or children, they are all leaders in their own right. We just have to help them and guide them, as Riya said, empower them to find out and hone their own leadership skills. And when we are talking about leadership skills, all of you all have covered almost all the possible leadership skills that an individual can have. And how are we going to
teach the girls? How are we going to train the girls or prepare the girls to become leaders is the challenge, you know. Like books में तो हम सब को पता है कि okay, time management है, discipline है, vision है, clarity of thought, creativity, flexibility, you know, reliability, whatever, all these are, you know, there's a list of leadership skills that we have. अब वो बच्चों को कैसे उसमें ट्रेन करना चाहिए, वो एक एवरी सिंगल डे प्रोसेस है. हर दिन में हमें ऐसे काम करने हैं या हमें इस तरह से उनको तैयार करना है कि वो हम आजीवन स्टूडेंट्स रहे, उनकी स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी कैसे होन करनी है. तो वो सो दैट इज अ डेली प्रोसेस. अगर हम ऐसे पर्सनालिटी, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ हेल्प के सब्जेक्ट या जो भी ऐसे सेशंस क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए, जिसमें वो डिस्कस कर सकते हैं कि भाई एवरी सिंगल स्किल इज ब्रोकन डाउन. जैसे एक्टिव लिसनिंग है या इमोशनल इंटेलिजेंस का स्किल हम पिकअप करते हैं और फिर वो उस स्किल पे हम एग्जाम्पल्स देते हैं कि कौन से लोग थे जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस एग्जेम्पलरी थी, जिनकी एक्टिव लिसनिंग एग्जेम्पलरी थी, जिनकी नेगोशिएशन या परस्यूएशन स्किल्स एग्जेम्पलरी थी, कि जिन्होंने या जिनकी टेक्निकल या स्ट्रेटेजिक स्किल्स. तो हर एक स्किल का हर एक बच्चे को मतलब प्रॉपरली उसका 360 डिग्री व्यू मिल जाए कि ये लोग हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स मैसिव थी और उन्होंने अपने वो स्किल्स को लेवरेज करते हुए वो लीडर बने हैं. तो फिर उनको पता चल जाएगा कि वो उनका सेल्फ अवेयरनेस के मेरे पास ये स्किल्स हैं और मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स के ऊपर चढ़ के कैसे लीडर बनना है, और मेरे ये जो वीकनेसेस हैं उनको उनका कैसे, मेरे वीकनेस का भी मैं कैसे फायदा उठा सकूं और उनको ओवरकम कर सकूं. तो ये सारी चीजें एवरी सिंगल डे या एवरी सिंगल वीक या हर एक एक्टिविटीज जो हम डिजाइन करते हैं या करिकुलम डिजाइन करते हैं, उसमें सेल्फ हेल्प और पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो अभी इनएविटेबल हो गया है हर एक बच्चे का, क्योंकि इवेंचुअली अभी वर्ल्ड इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि जब वो आगे जाएंगे आज से 15 साल के बाद या 10 साल के बाद, जब वो रेडी फॉर सोसाइटी बनेंगे, तो डेफिनेटली ये जो हम उनको सेल्फ पर्सनल ग्रोथ सब्जेक्ट जो कि एक्चुअली फोकस में नहीं होता है, कैसे एक चाइल्ड का पर्सनल ग्रोथ हो, तो वो हम एक एक स्किल को ब्रेक डाउन करके कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स देके, तो फिर वो खुद एग्जाम्पलरी बन जाएंगे, इंस्पायरिंग बन जाएंगे बच्चे. ऐसा मुझे लगता है. थैंक यू. Thank you, Falguni ma'am. That was a wonderful insight, and there's much that we could take from that. Nilima madam, would you like to share your thoughts? Yes sir, definitely. ये जो पोएम जहाँ से शुरू होती है, where the mind is without fear and the head is held high, ये जो एक लाइन है और आपकी जो लास्ट वाली लाइन है उस पोएम की, ये जो दो लाइन है, मेरी आवाज आ रही है? ओके. तो ये जो दो लाइंस है, यहाँ पे आपने एक पूरे लीडर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और जो हर एक इंसान को जानने और इम्प्लीमेंट करने बहुत ज़रूरी है. कि अगर हम अपने मन में डर रखेंगे, अगर एज ए लीडर हम अगर अपने मन में डर रखते हैं तो हम आगे कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. तो इसलिए एज ए लीडर या फिर आपके जो भी फॉलोअर होंगे, तो उसमें एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो हमारे बच्चे भी है, तो उनको भी जब भी हम लोग कोई एक्टिविटी दे के उनको एज ए लीडर हमको अगर आगे उनको बढ़ाना है, तो ये दो चीज़ें माइंड में रख के उनके लिए जो भी एक्टिविटीज़ है वो अगर हम प्लान करते हैं तो होपफुली वो काफ़ी बेटर रहेंगी. दैट्स व्हाट आई थिंक. थैंक यू. Sure. Thank you, Nilima. Kamal madam, we have got the feedback, and everybody they have shared their thoughts. So, would you please give us the last? I have just one more thing to add, Dr. Nagar, if I may. I'm looking at this poem again, and there's the second line which says, "Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls." So I'd like to just substitute the world over there for Gurukul.
And what I would like to say is कि सब लीडर्स, हमारे सब लीडर्स को मैं विनती करूंगी कि yes, अपने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, अपने क्षेत्र पर कंसंट्रेट करो, ये योग्य है, गुरुकुल के लिए अच्छा है, लेकिन प्लीज ये मत भूलो कि we are working for a gurukul. It has to be a vision for gurukul, not just your own sphere. Please stay united and please work for a greater good. So let's not be broken up into narrow domestic walls. Let us keep the vision of our institution at the forefront of everything we do. I just wanted to end with that. Sure. Thank you so much, Kamal Madam. We'll definitely, follow your advice. Ma'am, since we have taken all the inputs and Shashank sir has also left, shall we close the meeting? Yes, absolutely. Thank you so much. Sure. Thank you very much, Kamal Madam, Pragna Madam, Rajna Madam, Meera Madam, Ria Madam, Yogesh, thank you so much for your inputs, Nilima Madam. All of, the entire team has given wonderful inputs, and it was wonderful interacting with everybody. So once again, thank you very, very much. Namaste, everybody. Namaste, everyone. Namaste. Namaste. Thank you, everybody.